إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: من كان يريد حق الآخرة نزد له في حقه ومن كان يريد حق الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک، خالق اور رازق ہے، میرا اور آپ کا معبود برحق ہے. عزیز حضرات، اللہ کا اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام عام طور پر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم کو ذرا قریب قریب آ جائیں، ٹیک چھوڑ دیں، عاجزی کے ساتھ اور احتیاج کے ساتھ، محتاجی کے ساتھ سننے کی اور بولنے والوں کو بھی بولنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اپنے آپ کو عاجز بنانا، اپنے آپ کو محتاج بنانا اس کلام کے یہ انتہائی ضروری ہے اثر لینے کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. عزیز حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى آیت نمبر 20 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، یعنی آخرت اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی محنت، اس کی کوشش آخرت کے لیے، نزد لہ فی حرثہ، آخرت کی کھیتی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی اس کی نیکی، ایک نیکی کو 10 نیکی، 10 کو 700 نیکیاں، 700 تک اس کو اجر و ثواب ہم عطا فرماتے ہیں. اگرچہ کہ اس نے ایک نیکی کی ہے لیکن 700 نیکیوں تک اس کا اضافہ کر کے ہم اس کو عطا فرماتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس کا ارادہ، جس کی محنت، جس کی کوشش، جس کی لگن، جس کی تڑپ دنیا ہی دنیا ہو، پیسہ ہی پیسہ ہو، مال ہی مال ہو، تو ہم اس کو بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. عزیز حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں آج کی مصروف زندگی میں انتہائی آدمی اپنے آپ کو مصروف بنا چکا ہے. کام ہی کام، کام ہی کام، کام ہی کام، مشغول انتہا، صبح سے شام تک مشغول ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. خاص طور پر بڑے بڑے شہروں میں آدمی صبح کو جاتا ہے، شام کو لوٹتا ہے گھر، بعض اوقات رات کو لوٹتا ہے. یعنی کام کے پیچھے اپنی لگن، اپنی تڑپ، سب کچھ، سب صلاحیت اسی کام کے پیچھے لگا دیتا ہے. کام ہی کام، مصروف زندگی، مشغول زندگی، اتنی مشغول زندگی کہ انسان، آج کا انسان ایک مومن کی نظر میں سب سے اہم رشتہ اس کے رب سے ہوتا ہے اور اس کے بندوں سے ہوتا ہے. لیکن کام میں اتنے مصروف ہو گیا، کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. بس صرف کام ہی کام میں جٹا ہوا ہے،
बैल की तरह जुटा हुआ है और पैसा बनाने में लगा हुआ है, नोट बनाने में लगा हुआ है, माल बनाकर बनाने में लगा हुआ है, जमा करने में लगा हुआ है आज का इंसान। तो ये बहुत बड़ी एक मसरूफ, अपने आप को मसरूफ कर देना एक बहुत बड़ा आज का फितना है, आज का फितना है। ये अल्लाह का अजाब है कि आदमी एक मोमिन अल्लाह के हुकूक को, अल्लाह के बंदों के हुकूक को नजरअंदाज करके अपने आप को अपनी सुबह के औकात, शाम के औकात, रात के औकात, अपना सारा टाइम जहां कमा रहा है तिजारत में लगा दे, या जहां जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मुलाजमत करता है, वहां लगा दे। दिन भर यही सोच, यही फिक्र, यही कोशिश, यही मेहनत। ये इंतहाई फितना आज का है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस फितने से बचाए। आखिर बंदों के भी हुकूक है, अल्लाह के भी हुकूक है, बंदों में के हुकूक में माँ बाप के हुकूक है, बीवी बच्चों के हुकूक है, बीवी बच्चों की तरबियत, बीवी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी है। ये तमाम जिम्मेदारी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ काम में लगे रहना इंतहाई गुनाह और इंतहाई ऐसी जिंदगी है जिसमें कि जो है गुनाह गुनाह दर गुनाह में मुलव्वस हो जाता है इंसान। इसी तरह बाज लोग समझते हैं कि अपने आप को मशगूल कर देना, मसरूफ कर देना बहुत बड़पन की बात है। अरे भाई वो इतने मशगूल होते हैं। इधर सामने आ जाइए, सामने आइए। हाँ इतने मशगूल है कि उसके पास टाइम नहीं, उसके पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसा समझता है। हालांकि ये इंतहाई बेवकूफी की अलामत है, इंतहाई बेवकूफी की अलामत है कि आदमी अल्लाह के हुकूक को भूलकर, बंदों के हुकूक को भूलकर, बीवी बच्चों के हुकूक को भूलकर, औलाद के हुकूक को भूलकर काम ही काम में लग जाए। ये इंतहाई बेवकूफी की अलामत है। लोग इस तरह से समझते हैं ये बड़पन की बात नहीं है, ये तो जो है कोताही और गफलत की बात है। अजीज हजरात, हुकूक के लिए, बंदों के हुकूक के लिए अल्लाह के हुकूक को अदा करते हुए अल्लाह की इबादत की जाए, ये अहम चीज है। मैं आपके सामने हदीस का एक वाकया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन अबी दाऊद में एक रिवायत जिक्र करते हैं, और वह बिन जुबैर रावी है। उस्मान बिन मज़ऊन की अहलिया आयशा माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आती है, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देखती हैं, कहती हैं कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम तो जो है अपनी हालत को अपनी हालत को ऐसी बनाए हुए रखे हो, बनाओ सिंगार नहीं। तुम्हारे शौहर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे शौहर के सामने तुमको बन सवर कर रहना चाहिए। तो उस्मान बिन मज़ऊन की बीवी कहती है कि मेरे शौहर को मेरा ख्याल ही नहीं, वो दिन भर रोजा रखते हैं और रात को नमाजें पढ़ते हैं, रात भर नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते रहते हैं और दिन भर रोजा रखते हैं, नफिल रोजा रखते हैं, नफिल नमाजें पढ़ते हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस कज़िये को पेश किया कि उस्मान बिन मज़ऊन इस तरह कहते हैं, उनकी अहलिया ने इस तरह से कहा। तो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन को बुलाकर कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है। तो उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया इन्न रहबानिय्यह लम तुक्तब अलैना, रहबानियत हम पर नहीं फर्ज की गई है, यानी बीवी बच्चों के हुकूक को काट कर, औलाद के हुकूक को काट कर नफली नमाजों में लगे रहना, नफली रोजों में लगे रहना, नफली तहज्जुद में लगे रहना, ये दीन नहीं है। और ये रहबानियत है कि आदमी सब कुछ छोड़कर एक नफिल नमाजों में पढ़ने लग जाए, नफिल रोजे रखने लग जाए। ऐसा मत करो। क्या तुम मुझको नहीं देखते हो, मैं नमाज रात को नमाज नफिल नमाज पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ और बीवी के हुकूक भी अदा करता हूँ और नफिल रोजा रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ, क्या तुम मुझको इस तरह नहीं देखते हो? तो इससे बात मालूम हुई कि इबादत, नफली इबादत भी बीवी के हुकूक को काट कर, बंदों के हुकूक को काट कर, औलाद के तरबियत की देखभाल के हुकूक को काट कर, बीवी के हुकूक को काट कर इस तरह से मशगूल हो जाना, ये इबादत नहीं है। यानी इबादत, नफली इबादत के बारे में अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम करो और अपनी बीवी का हक अदा करो, नफली नमाजें पढ़ना कम करो,
اور नफली रोजे रखना कम कीजिए, अपनी औलाद की अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, बीवी का हक अदा कीजिए, अपने आप का हक अदा कीजिए, यानी रात को सो जाइए, अपनी नफ्स का अले का हक, तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक है। इस तरह से अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नफली इबादत के लिए आपने इस तरह फरमाया है, तो भी बच्चों के हुकूक को काट कर हमेशा तिजारत में मशगूल रह जाना या हमेशा दुनिया के कामों में मशगूल रहना अपने आप को किसी तरह जायज नहीं है। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तिरमिजी की हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह, ये हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अल्फाज को और माने को दोनों, अल्लाह के अल्फाज और दोनों को अल्लाह के नबी नकल फरमाते हो, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है बेशक, लेकिन कुरान के अलावा भी एक अल्लाह का कलाम है, वो है हदीस कुदसी, जिसको अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्फाज भी अल्लाह के होते हैं, माने भी अल्लाह के होते हैं। इस तरह की एक हदीस कुदसी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यब्न आदम, ऐ इब्ने आदम, आदम के बेटे, तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल। वक्त निकालना, टाइम निकालने का मतलब ये है कि तमाम कामों को छोड़कर मेरी इबादत को तरजीह दे, क्योंकि हर इंसान के दिल में, मेरे और आपके दिल में दो लिस्ट होते हैं, दो फहरिस्तें होते हैं। एक फहरिस्त अपने नफसानी ख्वाहिशात की, एक फहरिस्त है शरीयत की, अल्लाह के हुक्मों की, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की। हर इंसान के दिल में दो फहरिस्तें होती हैं। तो वक्त पर जब वक्त आए, अल्लाह का हुक्म आए, अपनी नफसानी ख्वाहिश को खत्म करते हुए, उसको नफसानी ख्वाहिश को खत्म करते हुए अल्लाह के हुक्म को तरजीह देना और अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, इसको कहते हैं इबादत। जैसे कि फजर की नमाज में नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ी जाए, ये इबादत है। इसको कहते हैं तफर्रग लिइबादती, यानी मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। तो इबादत की कई किस्में, एक इबादत वो है कि इंसान, जैसे कि नमाज है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। ये इबादत ऐसी इबादत है कि होश में आने से लेकर खबर में जाने तक इसके तकाजों को पूरा करना, इसके डिमांड्स को पूरा करना और इसकी शर्तों को पूरा करना, ये सबसे पहली इबादत है। आमतौर पर इबादत का तस्वुर आते ही नमाज के बारे में हमारा ख्याल जाता है, नमाज इबादत है। नमाज की इबादत से पहले भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सबसे बड़ी इबादत है और सबसे पहली इबादत है और सबसे आखिरी इबादत भी है, क्योंकि इसी इबादत की वजह से जन्नत में दाखिला मिलता है। तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का अदा करना, उसके तकाजों को पूरा करना और उसके डिमांड को पूरा करना, होश में आने से लेकर खबर में जाने तक, क्योंकि इस इबादत का वक्त नहीं, इस इबादत का टाइम और वक्त जिंदगी भर का है। हर छोटे से छोटे शिर्क के मौके से अपने आप को बचाना और हर छोटे से छोटे तौहीद के मौके पर अपने आप को जमाए रखना, यह है इबादत। और इसी तरह छोटी सी छोटी सुन्नत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पाबंदी करना और छोटी से बिदअत से अपने आप को बचाना, यह है असल इबादत। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए अपना वक्त निकाल, अपना टाइम निकाल। जहां कहीं भी, जिस जगह भी तू मेरी इबादत कर रहा है, अगर तू तिजारत कर रहा है तो सच्चाई और अमानतदारी के साथ तिजारत करना, ये भी इबादत है। अगर दुकानदारी कर रहा है, सच्चाई और अमानतदारी के साथ दुकानदारी करना, ये भी इबादत है। किसी जगह किसी कंपनी में काम कर रहा है तो अमानतदारी के साथ काम करना, ये भी इबादत है। और तो ये सारी इबादतें हैं, लेकिन इन इबादतों के अलावा बात इबादतें ऐसी भी हैं जिनके लिए टाइम निकालना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। जैसे 5 वक्त की नमाजें हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल। मेरी इबादत के लिए टाइम निकालने का मतलब यह है कि अपने हुक्म को, अपनी मर्जी को छोड़कर, अपनी ख्वाहिश को छोड़कर मेरे हुक्म को पूरा कर, ये मतलब होता है इबादत का।
تو فرمایا اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا تو اللہ نے دو انعامات کا ذکر کیا. املا صدر کا غنا، تیرے سینے کو میں بے نیازی سے بھر دوں گا. یعنی تیری زندگی میں جتنی بھی تیری ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کے بارے میں تو پریشان نہیں ہوگا، بے نیاز رہے گا اور مطمئن رہے گا، چین سکون رہے گا تجھ کو تیری زندگی میں اور تیری ہر معاملے میں. میں تجھ کو بے نیازی سے برتنے اور بے نیازی کا تحفہ عطا فرماؤں گا. املا صدر کا غنا. پھر دوسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی، تیری غریبی، تیری تنگ دستی کے تمام دروازوں کو، جہاں تیرے گھر میں جس جگہ سے تنگ دستی آ رہی ہوگی، جس جگہ سے فقر و فاقہ آ رہا ہوگا، اس کے تمام دروازوں کو میں بند کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ وعدہ اس وقت ہے جبکہ مومن اس کے حکموں کے لیے اس کی اطاعت کرے، زندگی میں قدم قدم میں سانس سانس میں یہ سوچے میرے رب کا اب حکم کیا ہے، میرے رب کی اب مرضی کیا ہے. ایک ایک سانس میں، ایک ایک قدم میں، ہر معاملے پر، دن ہو کہ رات ہو، لین دین میں، معاملات میں، تعلقات میں، تجارتی تعلقات میں اور یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں، ہر ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے اور میرے نبی کی سنت کیا ہے. تو اس طرح سے دیکھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا انعام کہ میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقہ کے، کیونکہ آدمی کو سب سے زیادہ پریشانی اسی میں ہوتی ہے کہ میں کیا کھاؤں، کیا پیوں اور پیسہ کہاں سے آئے، میں کہیں غریب تو نہ بن جاؤں، کہیں غربت تو نہ آ جائے. اللہ وعدہ فرماتا ہے وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرے فقر کو اور تیری تنگدستی کو بند کر دوں گا. تمام دروازوں کو، تمام راستوں کو، جہاں سے بھی غریبی آ رہی ہوگی، جہاں سے بھی تنگ دستی آ رہی ہوگی، جس جگہ سے بھی تنگ دستی آ رہی ہوگی اس کو میں بند کر دوں گا. یہ دو اللہ کے وعدے ہیں. وَإِلَّا تَفْعَلْ، پھر فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، میرے حکم کے لیے جو ہے میرے حکم کو ترجیح نہیں دے گا، میری عبادت کو ترجیح نہیں دے گا، اپنی خواہش کو ترجیح دے گا، اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہے گا اور میری عبادت نہیں کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے دو سزائیں رکھی ہیں. مالا تو یدئی کا شغلن، سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کو کام میں پھنسا دوں گا. کام ہی کام، بس صبح سے شام تک لگا رہے پیچھے، کام کے پیچھے، پیسہ بنانے کے پیچھے، نوٹ بنانے کے پیچھے. ملأت یدیک شغلا، کام ہی کام میں پھنسا دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں میں کام میں مشغول ہو جائیں گے. اتنا تیرے دونوں ہاتھ کام میں مشغول ہو جانے کے باوجود دوسری سزا، یہ تو بہت ٹینشن ہو جائے گا، کام کا ٹینشن، کام کا ٹینشن اور کام کی پریشانی، خوب کام کرے گا، گدھے کی طرح کام کرے گا اور کاموں سے بھر دوں گا تیرے ہاتھوں کو. پھر فرمایا دوسری سزا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اس کے باوجود تیری تنگ دستی، غریبی، محتاجی کے دروازے بند نہیں ہوں گے، کیونکہ تو نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا ہے کہ میں زیادہ کام کروں گا تو میری اپنی ضرورت پوری ہوگی. اللہ پر بھروسہ نہیں کیا ہے، اللہ پر توکل نہیں کیا ہے، اللہ دینے والا ہے یہ نہیں تیرا نظریہ ہے. اگر یہ تیرا نظریہ ہوتا کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے تو عبادت کرتا، 5 وقت کی نماز کے لیے اپنا وقت نکالتا، لیکن 5 وقت کی نماز کے لیے اپنا ٹائم نہ نکالنا اور کام میں مشغول رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ میں جتنا کام کروں گا میں اتنا نوٹ بناؤں گا، میں جتنا کام محنت کروں گا اتنی نوٹ بنے گی، اتنا پیسہ بنے گا، اتنا مال بنے گا. یہ تیرا عقیدہ جب بنا ہوا ہے تو میں بھی کیا کروں گا، لم اسد فقرک، تیری غریبی محتاجی کے دروازوں کو میں بند نہیں کروں گا بلکہ کھلتے جائیں گے دروازے، ایک کے بعد ایک دروازہ، ایک کے بعد ایک راستہ غریبی کا، محتاجی کا کھلتا جائے گا اور تو پریشان ہو جائے گا.
काम करते हुए भी परेशान हो जाएगा, काम मेहनत करते हुए भी परेशान होगा, और तेरी गरीबी मुफलिसी दूर नहीं होगी। तो दो सजाएं, अल्लाह ताला के दो वादे हैं और दो सजाएं हैं। वादे इबादत करने पर है, इताअत करने पर है, और सजाएं नाफरमानी करने पर और इबादत ना करने पर दो सजाएं हैं इस हदीस में। अजीज हजरात, कितने लोग ऐसे हैं कि वो लोग यानी कितने घराने ऐसे हैं कि नेक लोग हैं, कमाने वाले बहुत कम हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बनाने वाले, पैसा भी उनके पास उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया है, वक्त भी दिया है और सेहत भी दी है, और बहुत पुरसुकून अंदाज से उनकी जिंदगियां गुजर रही हैं, और वो अपनी जिंदगियों में अल्लाह के हुकूक को भी अदा कर रहे हैं, बंदों के हुकूक को अदा कर रहे हैं, माँ बाप के हुकूक को अदा कर रहे हैं, और अपनी औलाद के हुकूक को अदा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कितनी बरकतें हैं उनकी जिंदगी में, थोड़ी सी आमदनी है, थोड़ी सी इनकम है, लेकिन सारे लोग खा पी कर इंतहाई खुशहाल घराना हम देखते हैं। अल्लाह ने उनकी एक एक चीज में, उनके माल में, उनकी जानों में बरकतें ही बरकतें रखती हैं। इसकी वजह क्या है कि वो इबादत करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए अपना वक्त निकालते हैं, अपना टाइम निकालते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको चैन सुकून अता फरमाया है। अजीज हज़रात, आज इंसान मशगूल होकर इतना मशगूल हो गया, इतना मशगूल हो गया है कि बीवी उसकी क्या कर रही है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उसको कोई पता नहीं है। बस सुबह से शाम तक गधे की तरह काम के पीछे लगा हुआ है और उसको होश ही नहीं। अजीज हज़रात, इस तरह की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इसी तरह मैं आपके सामने एक और हदीस पेश करना चाहता हूँ कि हम वो हदीस पेश करने से पहले हम देखते हैं बाज घराने ऐसे हैं कि खूब कमाते हैं, बाबा भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन कोई यानी मतलब है कि वो खुशहाल घराना नहीं है। बेहयाई, बेशर्मी का माहौल है घरों में, गानों का माहौल है घरों में, औरतों में हया और पर्दादारी नहीं है, औरतों में शर्म और पर्दादारी नहीं है, और घर का माहौल बदला हुआ है, घर का माहौल गानों का है, घर का माहौल टीवी का है। ऐसे घर में बरकतें का मफकूद है, बरकतें नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा घर और ऐसा घराना अल्लाह की इबादत से महरूम, अल्लाह के जिक्र से महरूम जो घराना होता है, ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगियों में चैन सुकून नहीं होता है। ऐसे लोग दुनिया के पीछे पड़ते हैं, ऐसे लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं, और अल्लाह ताला कहता है, ऐ बंदे, तू अगर मेरी इबादत को छोड़कर पैसे के पीछे लगेगा तो मैं तुझको पैसे के ही हवाले कर दूंगा। अल्लाह ताला ने इनको पैसे के ही हवाले कर दिया, दुनिया के ही हवाले कर दिया, दुनिया के माल के ही हवाले कर दिया। अब ये लोग ऐसे हैं कि दुनिया के पीछे पड़ के गधे की तरह मेहनत करके उसी टेंशन में उनको मौत आती है, दुनिया के पीछे पड़कर उसी टेंशन में उनकी मौत भी, उनका अंजाम भी बुरा होता है, उनकी मौत भी बुरी होती है। मुझे इस वक्त एक वाकया याद आ रहा है। एक आदमी था तो मुसलमान ही, मोमिन ही, लेकिन घोड़े का चारा बेचता था। फुटपाथ पर घोड़े का चारा बेचता था। अब सुबह में से शाम तक बस उसका ये ही रट, आ जाना, फुटपाथ पर दुकान लगा देना और रट लगा देना, 50 रुपए में कट्टा, 50 रुपए में कट्टा। इस तरह से उसकी जिंदगी, न उसकी जिंदगी में अल्लाह, न उसकी जिंदगी में अल्लाह के रसूल, बस नमाजें नहीं, 5 वक्त की नमाजें नहीं, अल्लाह की इताअत नहीं, फरमाबरदारी नहीं, बस पैसे के पीछे गधे की तरफ भागना। 50 रुपए कट्टा, 50 रुपए कट्टा। आखिर कब तक इंसान बोलता रहेगा, कमाता रहा, बुरा हो गया। जब बुरा हो गया तो बच्चों ने, जब बुरा हो जाता है तो बीमार भी हो जाता है, तो बच्चों ने अस्पताल में दाखिल करवा दिया, एडमिट करवा दिया अस्पताल में। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। आदमी दुनिया की जिंदगी में जिस चीज को अहमियत देता है, अजीज जरा याद रखिए इस बात को, जिस चीज को अपने दिल गुर्दे पे लेता है, वही चीज मौत के वक्त आती है। अगर कुरान को, अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अहमियत देता होगा
تو वही चीज मौत के वक्त आती है। जबान पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अगर उसको अहमियत नहीं दे रहा होगा तो जो चीज जिस चीज की उसके पास अहमियत है वही मौत के वक्त जबान पर आती है। कितने कितने ऐसे लोगों को हमने देखा कि मौत के वक्त प्रॉपर्टियों को याद करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी ऐसी है, बड़ा पैसा ऐसा है, बड़ा माल ऐसा है, बेटे उससे मांग लेना, उनसे ले लेना, क्योंकि जिंदगी भर उनकी इस पर उनकी सारी कोशिश, उनकी सारी मेहनत, उनके सारे इरादे, उनकी सारी नियतें दुनिया के पीछे लगी हुई, गधे की तरह वो दुनिया के पीछे, माल के पैसे पीछे, पैसों के पीछे लगे हुए थे। इस तरह से वही उनके सर पर सवार होता है, दुनिया और पैसा उनके सर पर सवार रहता है और उसी की वो बात लगती है। चुनांचे आदमी भी ऐसा ही था। तो जब वो अस्पताल में एडमिट हो गया तो दोस्तों को मालूम हुआ कि हमारा दोस्त बहुत ही नाजुक हालत में है, चलो चल के उसकी इयादत करेंगे, बीमार कुर्सी करेंगे। चार पांच दोस्त मिलकर अस्पताल आए। अस्पताल आकर उसको देखने के लिए आए कि आखिर उसका क्या हाल है, उसकी क्या हालत है। मुलाकात की, देखा तो जो है इंतहाई नाजुक हालत में और जान है कि अभी अभी निकलने वाली है। तो एक दोस्त को याद आया कि भाई हदीस में इस बात का जिक्र है कि जब आदमी करीबुल मौत हो तो उसको किस बात की तलकीन की जाए, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करने का हुक्म है। तो बाजू बैठकर उसका दोस्त कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करने लगा। तो इसने क्या कहा, 50 रुपए कट्टा, 50 रुपए कट्टा, क्योंकि जिंदगी भर 50 रुपए कट्टा के पीछे भागता रहा, दौड़ता रहा, पैसे के पीछे दौड़ता रहा, दुनिया बनाने के पीछे दौड़ता रहा, नोट बनाने के पीछे दौड़ता रहा। उसकी कोशिश, उसकी मेहनत, उसका दिमाग, उसका दिल इसी के लिए चलता रहा, जिसकी वजह से वो कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह से महरूम। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों का भी ख्याल रखिए, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का ख्याल रखिए, उसके लिए टाइम निकालिए, उसके लिए वक्त निकालिए, वरना अंजाम बुरा होगा, मौत बुरी होगी। आपके सामने मैं एक और हदीस पेश कर बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सिलसिला सहीहा की हदीस है जिसको इमाम अलबानी ने अपने मजमूए में जिक्र किया है। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानतिद दुनिया हम्मुहु, जिसकी फिक्र, जिसकी सोच, जिसकी फिक्र, जिसकी सोच दुनिया ही दुनिया हो, पैसा ही पैसा हो, माल ही माल हो, नफसानी ख्वाहिश हो, दौलत, इज्जत, शहवत, लज्जत, बस इसी के पीछे उसके दिन रात गुजरते हैं, इसी के पीछे उसके इरादे होते हैं, इसी के पीछे उसकी नियतें होती हैं, इसी के पीछे उसकी कोशिशें होती हैं, इसी के पीछे उसके सोचे होती हैं। मन कानतिद दुनिया हम्मुहु, जिसकी इरादे, जिसकी कोशिश, जिसकी नियत, जिसकी मेहनत, उसकी सारी जिंदगी का खुलासा दुनिया जमा करना, पैसा जमा करना, नोट छापना, ये जमा करना और गिनना, ये जिसकी आदत हो और ये जिसकी खसलत हो, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, उसको 3 सजाएं देंगे। अल्लाह ताला दुनिया की जिंदगी में 3 सजाएं देंगे। सबसे पहली सजा, फर्रक़ल्लाहु अलैहि अम्रहु, अल्लाह ताला उसकी जरूरतों को बिखेर देंगे, उसकी जरूरतों को फेंक देंगे, अल्लाह ताला दूर दूर फेंक देंगे। दस्तर की जरूरतों को दूर दूर फेंक देंगे, बिस्तर की जरूरतों को दूर दूर फेंक देंगे। तो अब ये गधे की तरह एक एक छोटी सी जरूरत के पीछे भागता रहेगा, इसकी उम्र उसी में खत्म होगी और इसके टेंशन उसी में रहेगा, इसकी सलाहियतें, इसकी ताकतें उसी में खत्म होंगी, क्योंकि ये अल्लाह के लिए अपनी ताकतों को नहीं लगाता है, अल्लाह के लिए अपने दिल दिमाग को नहीं देता है। जब अल्लाह के लिए अपने दिल दिमाग जिगर को नहीं देता है तो अल्लाह ताला जब दुनिया के लिए देता है तो दुनिया के ही हवाले करते हैं, बंदे तो दुनिया का ही होता है। फर्रक़ल्लाहु अलैहि अम्रहु, अल्लाह ताला उसकी जरूरतों को बिखेर देते हैं। अब एक एक छोटी सी जरूरत के पीछे भागने लगता है और फिर क्या करते हैं, दूसरी सजा, वजअल फ़क़रहु बैन ऐनैहि, और दूसरी सबसे बड़ी सजा उसकी मोहताजी, उसकी गुर्बत,
اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں. اتنا سب کچھ بھاگنے کے بعد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، گھر بنانا ہے، گھر ذاتی نہیں ہے، اس طرح کی ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی جائیں گی. اب وہ اسی میں مشغول ہو جائے گا، نمازوں کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، اور وقت کے لیے نمازوں کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اسی میں مشغول ہو جائے گا. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اس کی محتاجی اور اس کی مفلسی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتے جائیں گے. اللہ ایک ایک چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آتی جائے گی. تیسری سزا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنا سب کچھ دوڑ دھوپ کرنے کے بعد، لم يأته من الدنيا الا ما كتب له، دنیا اور مال اور پیسے میں سے اس کو اتنا ہی ملے گا جس کے نصیب میں، تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے. جبکہ اس کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ میں زیادہ کروں گا تو زیادہ ملے گا، زیادہ کروں گا تو زیادہ ملے گا نہیں. اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ زیادہ دیں گے. اپنی محنت پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نہیں دیں گے، اتنا ہی دیں گے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے. 3 قسم کی سزا اس طرح سے. پھر اس کے بعد دوسرا کردار، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، جس مومن کی کوشش، جس مومن کی محنت، جس مومن کا ارادہ، جس مومن کی صبح، جس مومن کے شام، جس مومن کی زندگی کی ایک سانس، جس مومن کی زندگی کا ایک قدم آخرت، میری قیامت میں میرا کیا حال ہوگا، میں قیامت میں کامیاب ہو جاؤں، میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، یہ اس کی فکر ہے، یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کی لگن ہے، یہ اس کی تڑپ ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، اور میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ بھی ہوں. یہ جس کی ارادہ ہے، جس کی نیت ہے، یہ جس کا کوشش ہے، جس کی محنت ہے، جس کی نیت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرمائے دنیا کی زندگی میں. 3 انعامات عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلا انعام، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں. دفتر کی تمام ضرورتیں، بستر کی تمام ضرورتیں، چھوٹی سی چھوٹی ضرورتیں، دنیا کی زندگی کی بڑی سی بڑی ضرورتیں ایک جگہ لا کر جمع کر دیں. اے بندے، ایک ہی جگہ، زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں. تھوڑی سی محنت کر لے، میری عبادت کر لے، تو کامیاب ہو جائے گا. تجھ کو چین ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. تھوڑی سی محنت پر بہت عطا کروں گا، تھوڑی سی محنت پر بہت ملے گا، کیونکہ زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جمع اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو ایک جگہ جمع کریں گے. تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کے دل کو چین، سکون، بے نیازی عطا فرمائیں گے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی اس کو عطا فرمائیں گے. ایسا نہیں کہ بھوکا مرے گا، ایسا نہیں ہے. جتنی اس کو ضرورت ہے، قناعت پسند زندگی، جتنا اس کو یعنی کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، گھر بنانے کی جتنی اس کی ضرورتیں ہیں، وہ تمام ضرورتیں اچھے انداز سے پوری کریں گے اللہ تعالیٰ. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، پھر فرمایا تیسرا انعام. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو ایک جگہ جمع کریں گے. دوسرا انعام ہے کہ اس کے سینے کو، اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دیں گے. تیسرا انعام یہ ہے وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ ناک رگڑتے ہوئے میرے فلاں بندے کے پاس جا، میرے فلاں بندے کے پاس جا، کیونکہ وہ میرا بندہ ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، اپنی زندگی میں سے، اپنے وقت میں سے میرے لیے ٹائم نکالتا ہے. فلاں بندے کے پاس جا. حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ جنگل کا مقام تھا، ایک آدمی جا رہا تھا، اچانک آسمان ابر آلود ہو گیا. آسمان میں ابر آلود ہونا یعنی آسمان میں بارش، بادل یعنی برسنے لگے، بادل
ऐसे आ गए, अबर आलूद हो गया, पानी से भरे हुए बादल चलने लगे। तो उसने ऊपर देखा, ऊपर जो ही देखा तो उसको एक आदमी का नाम सुनाई दिया। तो ऊपर एक आदमी को आवाज आई कि फला आदमी के पास जाओ, फला आदमी के खेत में जाकर बरसाओ, हुक्म मिल रहा है। किसको? बादल को हुक्म मिल रहा है। तो इसने सुना, अरे ये कैसा है, उसका नाम लिया जा रहा है। दौड़ने लगा बादल के जैसा जैसा तेजी से ये भी दौड़ने लगा, यहाँ तक के एक खेत में चला गया। और खेत में जाकर देखा तो एक किसान अपने खेत में पानी, नाली में पानी बना रहा है, उसकी क्यारियां बना रहा है। तो पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम पूछने की क्या जरूरत है आपको, नहीं आप बोलिए ना आपका नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया। तो उसने कहा यही नाम मैंने आसमान से बादलों से सुनकर मैं आया हूँ, अभी अभी बादलों से सुनकर आया हूँ। आखिर बादल को हुक्म दिया जा रहा है फरिश्तों की तरफ से कि फला जगह जाकर, फला खेत में जाकर बरस। तो इस तरह से हुक्म दिया जा रहा है। आखिर आपका अमल क्या है, आप क्या करते हैं? तो वो शर्मिंदा हो गया, उस शख्स शर्मिंदा होकर कहने लगा, अब जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा, मैं इस खेत को सैराब करता हूँ, इसकी आमदनी जो इसकी इनकम होती है इसको 3 हिस्से में बांटता हूँ। एक हिस्सा मैं और मेरी बीवी के खर्च के लिए रखता हूँ, दूसरा हिस्सा इसी खेत में लगाता हूँ, और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए मुकर्रर करता हूँ। यानी अपनी इनकम में से गरीबों के लिए परसेंटेज निकालना, ये इंतहाई नेकी और सदका और खैरात का काम मैं करता हूँ। चुनाचे इसीलिए आसमान से मेरा नाम शायद लिया गया। तो उस आदमी ने कहा यही वजह है। तो अल्लाह, मैं ये बता रहा था, तो अल्लाह ताला वादत हो दुनिया, तीसरा बड़ा इनाम, दुनिया नाक रगड़ते हुए उसके पास अल्लाह ताला भिजवाता है कि फला बंदे के पास जा। कई मरतबा हम देखते हैं कि मामलात होते हैं कारखानों में, किसी जगह जाकर आप टेंडर देते हैं, क्या कोई मामला देखते हैं, तो कहते हैं हम आपको नहीं देना चाहते हैं, फिर भी आपको दे देंगे। इस तरह से हालात होते हैं, क्योंकि वो दुआ किया करके आया होता है और वो उसने अपनी जिंदगी तकवा और शियार वाली जिंदगी बनाया होगा, इसलिए जो है अल्लाह ताला की मदद उसके सामने आती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको यानी अल्लाह के और अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने आप को इतना बिजी, खास तौर पर इतने बड़े बड़े शहरों में ये बात देखी गई है कि अपने आप को इतना मसरूफ कर लेना कि बंदों के हुकूक भी अदा नहीं करना और अल्लाह के हुकूक भी अदा नहीं करना, ये एक सजा होती है, एक अजाब होता है। अल्लाह ताला अपने इस अजाब से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। इस अजाब से बचने की एक शक्ल ये भी है कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ी जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नई मस्जिद आपके महल्ले में बनी है। अल्लाह ताला इन बनाने वालों को और जिस मकसद के लिए इन्होंने बनाया है उनको मग़फ़िरत अता फरमाए और उनको बख्शिश अता फरमाए। आसपास के ये जितने भी घर हैं वो बहुत मुबारक है। आपके लिए ऐसी मस्जिद बन चुकी है, इसको आबाद करने की तरफ कोशिश कीजिए और कुछ ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना ताउन करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए और इसको आबाद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाफिर ज़म्बि व क़ाबिल तौब शदीद इक़ाबिल तौब ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। अम्मा बअद अय्युहन नास इत्तक़ुल्लाह व राक़िबूहु फ़ी कुल्लि अमालिकुम वफ़अलू मा अमरकुमुल्लाहु व रसूलुहु वंतहू अम्मा नहाकुमुल्लाहु व रसूलुहु फ़ज़जर। अला व सल्लू अला नबिय्यिकुम हैथु अमरकुमुल्लाहु बिअम्रिन बदअ फ़ीहि बिनफ़्सिहि थुम्मा थन्ना बिल मलाइका थुम्मा थल्लथ बिकुम अय्युहल मुअमिनून मिनल इंसि वल जिन्न حيث قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أيها الناس اسمعوا وعوا، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.